हे एवरीवन वेलकम बैक। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नाउ एआई हैज बीन ऑन द न्यूज़ अलॉट। दैट इज बिकॉज मोर रिसेंटली ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स रिलीज हुए हैं जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के भी ऊपर है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आप आजकल जो भी काम कर रहे हो या फिर आप किसी को काम करते हुए देख रहे हो, इवेंचुअली वो सारे काम रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। सो यू कैन इमेजिन कि आपके घर में एक एआई रोबोट काम कर रहा है एंड इट इज क्लीनिंग योर होम, or maybe there is an AI cook which is making food for you, making breakfast for you. 2 years ago, OpenAI released a model called GPT. Now, after this model was released, suddenly there was a boom. Most of the things that humans do has been replaced by this GPT model. What this GPT model is, क्या करता है ये हम लोग देखेंगे कोर्स के थोड़ा एंड में। बट फॉर टुडे वी आर गोइंग टू सी द बेसिक्स ऑफ एआई। हाउ डू यू डिफाइन एआई एंड क्या चीज़ें एआई होती हैं, एआई के कितने सारे पार्ट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस सेशन। सो फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड जब आप सुनते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि एआई क्या होता है and how do you even define AI? So basically, they are machines which actually try to copy human intelligence. They are not actually intelligent. उनको actually नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं. They are just trying to copy what a human does. But what do you mean by copy? So for example, there is a self-driving car. Now, a human will be able to drive that car from one place to another, right? कोई भी एक ह्यूमन अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एक कार को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, राइट? बट ह्यूमन को पता है कि वो जा रहा है ए से बी, बट मशीन को नहीं पता है। इट इज़ जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। So similarly, machines can also be trained to play chess. Again, it is trying to copy the human's intelligence. It does not know what it is doing. It is just following some rules. So AI refers to the computer systems that actually require human knowledge, human intelligence, but they are actually copying human intelligence. Before we begin into the actual lecture, I would just like to introduce myself. अगर आपको already नहीं पता है, my name is Akash Singh. I work in the field of AI. So basically, when we talked about the GPT model, using the GPT models, I am creating softwares, and these softwares generally automate things. They act like humans, and it comes under the department of natural language processing. So अगर आपने पहले नहीं सुना है, ये भी हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट इस सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी चेंज होती रहती है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल डेफिनेशन। तो आप कोर्स में भी देखोगे विद ईच लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो बढ़ती जाएगी। But the most important part of this session is going to be the evolution of AI, the types of AI, and the domains of AI. These three things will actually give you an idea कि artificial intelligence पे जो काम हो रहा है वो कौन सी fields में हो रहा है. By the end of this session हम लोग थोड़ी technical terms देखेंगे. If you have studied AI in class 10th, it might be easy for you. But अगर आप first time भी पढ़ रहे हो, it might not be very difficult. Okay, so let's begin with the first topic. What is artificial intelligence? So artificial intelligence is not a new thing now. It all started around 2010s, 2000s में start हुआ था. But आपके courses में more recently 4-5 साल पहले ही आया है. So how do you define artificial intelligence? The ability of a machine to learn patterns and make predictions. सो ह्यूमंस भी यही करते हैं, राइट? अगर एक ह्यूमन रोड पे चलता हुआ जा रहा है और उसको एक पत्थर दिखे, वो उस पे टकराएगा नहीं, राइट? बट व्हेन दैट ह्यूमन वाज अ किड, हो सकता है कभी बचपन में वो ह्यूमन चल रहा था एंड गलती से पत्थर पे पैर लग गया। सो द ह्यूमंस लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। सिमिलरली दिस एबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम पैटर्न्स, लर्निंग फ्रॉम डेटा, when it's transferred to a machine, the machine can start to make predictions. You can also say that machine thinks, but it's not something it does. It's just making some calculations. So हम लोग बोल सकते हैं कि machine is becoming artificially intelligent. So ये AI कहाँ कहाँ implement हो रहा है? तो आपका अगर आप फ़ोन देखोगे उसमें गूगल टॉक होगा। आप अगर एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसमें सिरी जैसी एक चीज़ होगी जो आप जिससे आप बात कर सकते हो। उससे आप बोल सकते हो प्लीज़ सेट माय अलार्म फॉर 10:30 AM एंड योर फ़ोन विल एक्चुअली सेट द अलार्म। So without pressing any buttons, you are able to talk to your phone. Also, AI can recognize pictures and also predict the future. क्रिश जैसा फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट होता है। ऐसा प्रेडिक्ट होता है कि कल का वेदर क्या होने वाला है
और मे बी आपको कौन सी मूवी अच्छी लगने वाली है, कौन से गाने अच्छे लगने वाले हैं। इन दैट सेंस इट इज़ गोइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, हाउ डू यू डिफाइन कि आपकी जो ऑटो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो एआई नहीं है, एंड आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो एआई है। सो वन थिंग, आपकी वॉशिंग मशीन सोचती नहीं है, आपकी वॉशिंग मशीन को एक ह्यूमन टच चाहिए। एक ह्यूमन को जाना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा वॉशिंग मशीन को प्लीज स्टार्ट, और मे बी यू हैव टू पुट इन क्लोथ्स, आपको कपड़े डालने पड़ेंगे उसके अंदर। Until and unless you do that, your washing machine will not do anything. But it is not the case with your mobile phone. As soon as you pick up your phone, it is going to sense your face, आपका face sense होगा, and automatically आपका phone unlock हो जाएगा. So basically your mobile phone is thinking at that moment. But how do we know it's thinking? So for example, अगर आपके फ़ोन पे facial lock है एंड आपका कोई फ्रेंड ओपन करने का ट्राई करेगा, योर मोबाइल फोन विल थिंक, इज इट माई एक्चुअल ओनर और नॉट, राइट? सो दैट इज हाउ योर मोबाइल फोन अनलॉक्स। सो इसके जो डेफिनेशन है, इट कम्स लाइक दिस: द थिंग्स विच रिक्वायर अ ह्यूमन टच इन द सेंस ह्यूमन इनपुट चाहिए, कि मशीन में कितने कपड़े होने चाहिए आपको, पानी कितना लगेगा, ऑल दीज थिंग्स आता है आपका ह्यूमन टच में। वेर एज द मशीन विच मेक्स डिसीजंस ऑन इट्स ओन, वी कॉल इट एआई। टॉकिंग अबाउट ये एआई आया कहाँ से, कब स्टार्ट हुआ था? सो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में क्या था, देयर वर अ लॉट ऑफ कंट्रीज फाइटिंग, स्पेशली जर्मनी, राइट? सो जब जर्मनी फाइट कर रहा था, इसके जो आर्मीज थी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई थी, बल्गेरिया, ऑल ओवर द यूरोप। सो ये बहुत एनकोडेड मैसेजेस में बात कर रहे थे, एनकोडेड मतलब सीक्रेट मैसेजेस में बात कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, यूएसए को इनके जो मैसेजेस हैं ये सुनाई दे रहे थे, बट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो ड्यूरिंग दैट टाइम सम कंप्यूटर साइंटिस्ट came up with an algorithm to decode these secret messages. So that's when the evolution of AI started. It happened around 1950s. लेटर ऑन बीच में थोड़ा स्टॉप आ गया था क्योंकि उनके पास नए एल्गोरिदम्स नहीं आ रहे थे, थोड़ा बोरिंग हो गया था एआई। बट इवेंचुअली न्यूरल नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस हुए, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जो एआई है काफ़ी एडवांस होने लगा, एंड टुडे वी आर सीइंग द पीक ऑफ एआई। तो लुकिंग एट द टाइप्स, देर आर एक्चुअली 3 लेवल्स, 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है एआई को। फर्स्ट वन इज नैरो एआई। सो बेसिकली मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रेडिक्टिंग द डिजिट। सो देर वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल, आप एक फोटो प्रोवाइड करोगे जिसमें आपने कोई भी एक डिजिट लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 7। अ नैरो एआई वुड रीड दिस इमेज एंड देन से इट इज 7। सो इट डज नॉट थिंक अ लॉट, इट जस्ट डज वन थिंग, एक सिंपल सी चीज़ हो रही है। तो वी से दैट इट इज नैरो एआई। Today we are at broad AI, which means a single AI can do a lot of tasks. It can reason, it can predict, it can calculate. So for example, आपके फ़ोन में जो है, एक्चुअली आपके फ़ोन में नहीं, जो लेटेस्ट फ़ोन्स आए हैं उसमें जो AI है, it can do all these things. It can talk to you, it can open your apps for you, it can make calculations on behalf of you, take notes and all these things. And the third level is जनरल AI और जनरल इंटेलिजेंस। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस से। तो बेसिकली अगर आप ब्रॉड एआई की बात करोगे तो इट इज़ नॉट ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट कैन नॉट क्रॉस द रोड्स ऑन इट्स ओन। अगर आप ब्रॉड एआई को बोलोगे प्लीज ऑर्डर फूड फॉर मी और प्लीज गिव दिस एग्जाम फॉर मी, इट वोंट बी एबल टू डू इट। बट अ जनरल एआई एक ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस होने वाला है। इट इज़ स्टिल थियोरेटिकल, अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, ये सिर्फ थ्योरी में है। बट इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट बाय 2050 ये सब चीज़ें होने वाली हैं। बट इफ़ यू लुक एट एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये सब लोग बोल रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 to 10 years this will be possible. Now that's a quite exciting time for us. तो अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे, सिंगल टास्क्स करता है नैरो एआई,
जैसे वॉइस बेस्ड शॉपिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स। ब्रॉड एआई थोड़ा और ज़्यादा काम कर सकता है। जनरली ये बिजनेस में यूज़ होता है, इसीलिए नॉर्मल ह्यूमंस के लिए या सिंपल पीपल के लिए ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है इसकी। एंड जनरल एआई इज एन एआई विच कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन। So let's have a quick look at artificial general intelligence. Now, it is going to take a lot of time. आजकल जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं. व्हेन आई से मॉडल्स आई मीन लैंग्वेज मॉडल्स, नॉट द मॉडल्स हु पोज फॉर फोटोज. सो दीज लैंग्वेज मॉडल्स आर ट्राइंग टू रीजन. अगर आप इसको कोई प्रॉब्लम दोगे इन लैंग्वेज मॉडल्स को, दे विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो सिंस यूर इन क्लास 11, सिंस यूर इन क्लास 12, अगर आप जेई के लिए भी पढ़ रहे हो, अगर आप जेई लेवल का क्वेश्चन इस एआई को दे दोगे, this AI will be able to give you a complete solution with all the steps. And currently, OpenAI, the company which is making these models, has released a latest model called O1. Now, this OpenAI O1 model has an IQ of 120. But what does it mean? It means कि it is smarter than 95% of the humans. जब ये मॉडल रिलीज हुआ था तो पीएचडी लेवल स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस से मैच किया गया है इसको. PhD level is a doctorate level, very highly intelligent humans. So AI has been getting intelligent at a very fast pace, but still IQ of 120 does not mean it is generally intelligent. एक ह्यूमन जैसे काम नहीं कर सकता, रोड क्रॉस नहीं कर सकता, आपके लिए खाना नहीं बना सकता, बट इट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स. Okay, so moving on to domains of AI. So when we are talking about domains, AI can work on different subjects. So for example, एक है लैंग्वेज. लैंग्वेज के ऊपर रीजनिंग करना, हिंदी में आप बात करोगे इट विल अंडरस्टैंड, इंग्लिश में आपने बात की इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. डेटा साइंस जो नंबर्स के ऊपर काम करता है एआई, कुछ प्रेडिक्शंस करेगा, कल कितनी बारिश होने वाली है, नेक्स्ट ईयर कितनी स्नोफॉल होने वाली है, मे बी कौन से रीजन्स हैं जो अफेक्ट होंगे सी लेवल राइज से. एंड व्हेन कंप्यूटर्स आर एबल टू लुक एट पिक्चर्स, दे आर एबल टू सी द वीडियोज, दे आर एबल टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एआई कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा है. So we discussed this. NLP enables the computers to understand and interpret general human language. तो humans एक दूसरे से बात जब करते हैं तो वो specific languages में बात करते हैं. They do not talk in terms of zeros and ones. So but एक कंप्यूटर को जीरो एंड वन में ही बात करनी पड़ती है. तो so to convert a natural language to a format that computer can understand takes a lot of computations. So हम लोग उसको बोलते हैं natural language processing. कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है? लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो आजकल. आप बहुत बड़े आर्टिकल्स एआई को दोगे तो दैट एआई विल बी एबल टू समराइज दैट फॉर यू. इट इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग. व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा साइंस, जनरली बैंक्स यूज़ करते हैं ये, गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं टू मेक predictions, to make analysis, to make budgets and so on. And computer vision deals with facial recognition, self driving cars, या फिर मेडिकल इमेजिंग. व्हाट डज मेडिकल इमेजिंग मीन? अगर आप अपना एक्सरे दिखाओगे एक एआई को, इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इफ यू हैव अ फ्रैक्चर और नॉट, इफ यू हैव सम अदर डिजीज और नॉट, इफ यू आर हेल्दी और नॉट. तो ये तीन डोमेन्स हैं एआई के. होता है एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो लैंग्वेज से डील करेगा, दूसरा होता है डेटा साइंस जो नंबर से डील करता है, थर्ड इज कंप्यूटर विजन विच एक्चुअली डील्स विद लुकिंग एट पिक्चर्स. तो एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं टू सी इफ यू रियली अंडरस्टैंड इट. तो जेस्चर रिकग्निशन किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन आंसर them on your notebook. तो चैटबॉट्स फॉर कंप्यूटर सर्विस, बात करने वाली चीज़ है तो एनएलपी. स्पैम डिटेक्शन अगेन लैंग्वेज से रिलेटेड है, एनएलपी. ऑटोनोमस ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस, तो इसमें कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा होगा, इसमें डेटा साइंस भी यूज़ हो रहा होगा क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन से लेवल पे आप अपना ड्रोन उड़ा रहे हो, कितनी स्पीड होनी चाहिए.
गूगल ट्रांसलेट अगेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है। फ्रॉड डिटेक्शन में हम लोग डेटा साइंस यूज़ करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी में जैसे स्नैपचैट फ़िल्टर्स हो गया, आपका इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स हो गया, वो सब आता है कंप्यूटर विज़न के अंदर। डेटा साइंस आपका गूगल मैप्स में भी यूज़ होता है, जहाँ पर आप कैलकुलेट करते हो चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी? तो इसमें डेटा साइंस यूज़ हो रहा है। इसमें एक टाइम पे कंप्यूटर विज़न भी यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस यूज़ होती हैं, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एआई, वी नो दैट इट इज़ अ वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दीज़ डेज़, बट एआई एक चीज़ पे काम करता है, व्हिच इज़ डेटा। डेटा को ये भी कहा जा रहा है कि ये न्यू ऑयल है, बिकॉज़ जितना डेटा आप एक एआई को देते हो, उतना ही स्मार्ट वो एआई हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सर्च रिकमेंडेशन, आपके यूट्यूब रिकमेंडेशंस, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ इट इज़ एआई जनरेटेड। सो डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आपका जितनी भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, आपकी जितनी मशीन्स चल रही हैं, जितने ऐप्स चल रही हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन डेटा। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेटा होता है, आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर्ड डेटा, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, आपको देख के ही अच्छा लगेगा। जैसे टेबल्स होते हैं, टेबल में कॉलम ए, कॉलम बी एंड देन रोज़। सो दिस इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटा। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गूगल पे जाओगे, किसी भी सॉन्ग के लिरिक्स देख लो, वीकेंड का कोई लिरिक्स देख लो। सो यू डू नॉट नो, इट इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, इट कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन इट, सो इट्स कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर आपकी पिक्चर्स भी आती हैं, इसके अंदर वीडियोज़ भी आती हैं, नंबर्स भी आती हैं, सो ऑन। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली a मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव अ टेबल, यू हैव कॉलम ए, कॉलम बी, बट आपके रोज़ के अंदर एक में इमेज है, एक में साउंड है, एक में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। स्ट्रक्चर डेटा वेरी गुड लुकिंग, काम करने में मज़ा आता है इसके साथ। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, बट देखने में उतना अच्छा नहीं है। वेराज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, the computer is not able to understand what it is. It just knows that these are all string values, these are all text values. Okay, so now moving on to natural language processing. So basically, NLP processes the human language. This is an example of Chat GPT. So Chat GPT क्या है? It is a language model. But what is a language model, you might ask? So internet पे जितना भी डेटा है, थिंक ऑफ इट एज दिस वे, देर इज़ अ मशीन, उसमें आपने इंटरनेट का सारा डेटा फीड कर दिया। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज़ बेसिकली ह्यूमन नॉलेज। आपने एक मशीन में ह्यूमन नॉलेज फिल कर दी, सो नाउ इट इज़ एबल टू रीजन, it is now able to understand what humans are saying. It is now able to create solutions to the questions human are asking. For example, इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन ने कि हाउ डू यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर कोड, तो दिस आंसर इज गिवन बाय द लैंग्वेज मॉडल। हाउ टू मर्ज डिक्शनरीज इन पाइथन वाज आस्क्ड, तो ये जो आंसर दे रहा है, ये चैट जीपीटी दे रहा है। तो व्हाट इट मीन्स, मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। सिमिलरली इफ वी गो टू कंप्यूटर विजन, अगर आप एक पिक्चर प्रोवाइड करोगे, द मशीन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पिक्चर इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ इट इज एबल टू सी दैट दिस पिक्चर वॉज ऑफ अ स्ट्रॉबेरी, इट्स अ फ्रूट। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन बिहाइंड द सीन्स, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है, बट फॉर दिस फर्स्ट सेशन यू जस्ट हैव टू सी एआई कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कौन कौन सी जगह पे उसका यूज़ हो रहा है, सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो क्विकली लेट्स टॉक अबाउट कि कंप्यूटर विजन कैसे काम कर रहा है बेसिकली। सो आप कोई भी इमेज देखोगे, उसको बहुत ज़्यादा जूम करो, तो आप देखोगे छोटे छोटे बॉक्सेस। नाउ दीज बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ कलर्स, राइट? जैसे एक आई की फोटो है, एक ह्यूमन को पता है कि एक आई है, बट कंप्यूटर कैसे पता लगाएगा? सो बेसिकली ईच ऑफ दीज स्मॉल डॉट्स इज कॉल्ड अ पिक्सल। नाउ पिक्सल हम लोग कलर्स देख पा रहे हैं,
I can see this is a green color. I can see this is a white color. I can see this is a skin color. But computer does not know that. Computer only knows numbers. So what do? We represent each of the color, the number, right? So basically we say 0 is black and 255 is white, or we can also say the opposite, and इसके बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि शेड्स ऑफ ग्रे हैं, या फिर अगर आपको कलर में देखना है तो कलर के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती है, आरजीबी बोला जाता है उसको। सो एक होता है कंप्लीटली ब्लैक, एक होता है कंप्लीटली रेड, कंप्लीटली ब्लैक, कंप्लीटली ग्रीन। सो कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे कंप्यूटर विजन चैप्टर में। So what happens is computer now can see these colors but using these numbers. So pixels बोला जाता है इन छोटे छोटे dots को, and the number of pixels in any image is called a resolution. अगर आपको बहुत easily समझना है, एक पिक्चर में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, एक पिक्चर में जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, एक पिक्चर में जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतनी ही अच्छी तरह से वो आपको पिक्चर दिखेगी। So that part is called a resolution, the number of pixels. तो अगर आप एक 1080p मॉनिटर देखोगे, इट इज़ गुड लुकिंग। आई मीन आप उसमें मूवीज़ अच्छे से देख सकते हो, बट इसमें उतने पिक्सेल्स नहीं हैं जितने एक 4K मॉनिटर में है। 4K में उससे 4 गुना ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे, इसीलिए वो 4 गुना ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखती हैं उस पे। Now you might be getting curious, how does a computer actually understand if it is a picture of a strawberry, if it is a picture of a human, if it is a picture of a cat? So basically, when you feed that image to a computer, computer can see it in terms of features. ये फीचर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर विजन इट वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, बट आप ये 11th स्टैंडर्ड में सीख रहे हो तो इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो लेट्स से एक कैट की पिक्चर हम लोगों ने डाली, एंड उसकी आइज़ जो है वो यहाँ पर है, ओके, एंड आइज़ के आसपास जो कलर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। सो लेट्स से इसकी इस पिक्सल की वैल्यू 53, इसकी 51, 52, 53, 54, बट बाकी जगह जो वैल्यू है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल डिजिट वैल्यूज। सो व्हाट डज कंप्यूटर लर्न फ्रॉम दिस, एंड हाउ डज कंप्यूटर लर्न फ्रॉम दिस? अगर आप बहुत ज़्यादा कैट की पिक्चर्स उसको फीड करोगे, इट विल बी एबल टू सी कि ये जो नंबर्स हैं हमेशा, जो 50 के ऊपर जा रहे हैं हमेशा नंबर्स, दिस ऑलवेज represents एन आई ऑफ अ कैट। I'm just giving a simple example. So this was picture 1. Now picture 2 might have something similar. So computer will again understand, okay, this is an eye. I feed it 3 pictures, 300 pictures. Now the computer is able to see and understand that this was a picture of a cat. Now when we are feeding it very big images, what happens is, ये तो सिर्फ एक फीचर था, फीचर 1 था। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स होते हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है यूजिंग कैलकुलेशन। सो दैट्स हाउ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इट्स ओके, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। हम लोग आगे देखेंगे हाउ एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स वर्क। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एआई टर्मिनोलॉजीज। So generally when we are talking about AI, you might hear me say also कि machines are thinking, but they are not actually thinking। पीछे calculations ही चल रही हैं, थोड़ी complicated calculations हैं, but they actually calculate। So artificial intelligence आप अभी तक समझ गए होंगे, when machines can predict, they can learn patterns, and they can also make decisions। What is machine learning? Now AI को data चाहिए होता है, we know this, but machine learning is that part of an AI जहाँ पर आप algorithms create करोगे। algorithms मतलब math equations होती हैं जो ये calculations को थोड़ा और easy बना देती हैं। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा data feed करते हैं इसके लिए, so that machines can start to learn and understand। तो इसमें एक फ़ायदा क्या है? इसमें आपको explicitly नहीं बताना पड़ेगा कि for example, if an image has 2 ears, if an image has many whiskers,
If an image has long tongue, so I'm talking about an animal, maybe you can take it as a cat. So ये जो rules हैं, ये आपको machine को बताने नहीं पड़ेंगे. Machine will automatically guess these rules. So using these algorithms, it is possible. तो हम लोग बोलते हैं ये machine learning है. Now वो जो हम लोग mathematical algorithms की बात कर रहे थे, they are still maths, but they are not as efficient as humans. Humans की intelligence is on a next level. So at one point of time during 1970s, some scientists thought, let's make maths algorithms such that it represents a human brain. So neurons जो हैं उसको एक मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया. एंड जब हम लोग ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज़ करने लगे तो जो कैलकुलेशंस थी बहुत बढ़ गई, विच ऑल्सो रिजल्टेड इन अ बेटर एक्यूरेसी. बट वन ड्रॉबैक वॉज कि इसमें जो डेटा था वो बहुत ज़्यादा डेटा लगने लगा. And that's why we call it deep learning, because it needs a lot of deep calculations, deep data, but it is the most advanced form of AI. बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है एआई का वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है अगर आप डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हो तो. सो व्हाट डज डीप लर्निंग लुक लाइक? सो दीज स्मॉल पार्ट्स आर एक्चुअली स्मॉल ह्यूमन न्यूरॉन्स, नॉट एक्चुअली ह्यूमन न्यूरॉन्स. ये मैथ में क्रिएट किए गए हैं, पाइथन में क्रिएट किए गए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. So they do small calculations and a collection of these can make a neural network. तो for your exams, for your syllabus, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. एक होता है इनपुट लेयर, जहाँ पर हम लोग फीचर्स इनपुट करते हैं, इमेजेस इनपुट करते हैं, साउंड इनपुट करते हैं. देन देयर कम्स अ पार्ट जहाँ पर वी डू नॉट नो व्हाट हैपन्स, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चलती है. इसको हम लोग बोलते हैं हिडन लेयर्स. एंड व्हेन द कैलकुलेशंस आर ओवर, an output is predicted at the output layer. So three layers are there. One is input layer, then we have hidden layer, and then finally an output layer. इसको हम लोग बोलते हैं deep learning. Now this is based on a human brain. अगर आपको जल्दी से डिफरेंस पता करना है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में, तो बेसिकली क्या है, इसकी एक्यूरेसी हमेशा ज़्यादा होगी, इसमें डेटा भी हमेशा ज़्यादा रहेगा, आपको रूल्स फीड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. ठीक है. तो ओवरऑल ये ज़्यादा एफिशिएंट है, बट वन ड्रॉबैक है इसमें बहुत ज़्यादा डेटा लगता है. वेराज मशीन लर्निंग में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन अगर नहीं करनी है, आपको कोई छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैट वर्सेस डॉग्स, तो आप एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर सकते हो. बट अगर आपको चाहिए कि आपका एआई सब चीज़ डिटेक्ट करे, एप्पल से लेके कार तक, प्लैनेट्स डिटेक्ट कर रहा है, गैलेक्सीज डिटेक्ट कर रहा है, टेबल डिटेक्ट कर रहा है, पीसी डिटेक्ट कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स नीड अ लॉट ऑफ डेटा. सो उसमें हम लोग डीप लर्निंग यूज़ करेंगे. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये चलता है. सो द क्वेश्चन इज, देर इज़ अ मीट डिपार्टमेंट, देर इज़ अ मीट स्टोर जहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ मीट्स मिलते हैं. सो नाउ दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. नाउ हाउ डू यू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मीट इट इज़? हो सकता है उसका टेक्सचर अलग होगा, हो सकता है उसका कलर अलग होगा, हो सकता है उसका शेप अलग होगा. अ ह्यूमन कैन सी ऑल दिस. एक ह्यूमन को पता है कि कौन सा मीट क्या है, कौन सी सब्जी क्या है. इट अ ह्यूमन कैन एक्चुअली पिक अप एंड सॉर्ट इट आउट. बट जब हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपको हर एक इमेज के साथ, हर एक मीट की इमेज के साथ उसका एक लेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा. व्हाट डज इट मीन? अगर आप चिकन प्रोवाइड कर रहे हो एक मशीन लर्निंग मॉडल को, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ अ चिकन. अगर आप पोर्क प्रोवाइड कर रहे हो, यू माइट हैव टू से दिस इज़ अ पोर्क. तो दिस इज़ कॉल्ड लेबल्ड डेटा. आपको लेबल करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो मशीन को क्या पता कि ये क्या चीज़ है, राइट? सो लेबल डेटा प्रोवाइड करते हो एंड देन इट गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन. नाउ दिस इज़ योर मॉडल. Again, it is a mathematical model, machine learning model. Now, once you feed all this data, it can start to predict कि this was a beef, this was chicken, and this was pork. Moving on, अगर आपको नहीं चाहिए कि आप ये सब चीज़ें फीड करो, बेसिकली अगर आपको लेबल्ड डेटा नहीं देना है, क्यों नहीं देना है लेबल्ड डेटा? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट.
अगर आप लेबल डेटा दे रहे हो तो किसी एक पर्सन को एक्चुअली मैनुअली लिखना पड़ेगा, राइट? कि दिस वाज अ पिक्चर ऑफ चिकन, दिस वाज अ पिक्चर ऑफ पोर्क। ये लिखना पड़ेगा ह्यूमन को, तब मशीन को आप दोगे। बट इन द लेबल डेटा देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लेबलिंग, एक ह्यूमन को इंटरप्ट करना पड़ेगा बीच में। बट अगर आप डीप लर्निंग मॉडल यूज करने वाले हो, इफ यू आर ट्राइंग टू यूज अ डीप लर्निंग मॉडल विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन, अ न्यूरॉन नेटवर्क, सो इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ दैट फीचर एक्सट्रैक्शन। जो ये न्यूरल नेटवर्क है, ये ऑटोमेटिकली सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। हाउ डज इट डू दैट? इट ऑटोमेटिकली चेक्स द कलर, इट ऑटोमेटिकली चेक्स द टेक्सचर, इट ऑटोमेटिकली चेक्स द शेप। सो आपको फीड करने की जरूरत नहीं है ये। एंड दिस इज वाई डीप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी जस्ट सॉ एक लेबल डेटा जहां पर चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, बिकॉज इट इज सुपरवाइज्ड बाय अ ह्यूमन। जब आप लेबल डेटा नहीं दे रहे हो, इट इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय अ ह्यूमन, सो देन वी से इट्स अनसुपरवाइज्ड। So basically it automatically finds the structure, it is kind of automatic. Whereas there is a third, so basically there is a third type of machine learning which is called reinforcement learning. So इसमें क्या होता है, मशीन गलती करके सीखती है just like humans, so we will talk about that. तो supervised learning, what was it? हम लोग लेबल डेटा यूज कर रहे थे। so इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? लीनियर रिग्रेशन। so what is linear regression? Basically you're trying to predict a number, कल कितनी बारिश होने वाली है, और मे बी इंडिया नेक्स्ट मैच में कितने रन स्कोर करने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया की कितनी विकेट्स जाने वाली हैं, एंड सो ऑन। व्हेन वी कम टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग। सो व्हाट हैपेंस इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज, आपका जो डेटा है उसको प्लॉट किया जाता है, एंड मशीन डज नॉट नो अलॉट, बट इट कैन सी कि ये जो डेटा है ये थोड़ा एक साथ ग्रुप्ड है, तो हो सकता है ये टाइप ए हो। ये जो डेटा है ये थोड़ा एक साथ ग्रुप्ड है, हो सकता है टाइप बी हो। सो दिस इज व्हाट an unsupervised learning model does. It works on unlabeled data. So moving on to reinforcement learning. Now this is kind of interesting. Generally reinforcement learning तब use होता है when you want to teach an AI to play games. गेम्स में थोड़े रूल्स होते हैं, राइट? तो अगर आप रूल तोड़ोगे, रूल ब्रेक करोगे, तो आप आउट हो जाओगे। सिमिलरली यू जस्ट फीड दैट इनटू एन एआई। एवरी टाइम द एआई ब्रेक्स अ रूल, हर बार, फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर प्लेइंग, एन एआई इज प्लेइंग मारियो, एंड हर बार मारियो हार रहा है, इट इज़ गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। सो मशीन लर्न्स फ्रॉम दैट एंड इट डज नॉट डू द सेम मूव अगेन। So that type of machine learning is called reinforcement learning. Generally playing games, controlling robots, इन चीज़ों में reinforcement learning यूज होता है। So we quickly saw a lot of things about AI कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन से टाइप ऑफ AI है। So these are just the basics. But one another thing that comes into picture is, हम लोग AI के बारे में पढ़ रहे हैं, is it actually useful or is it actually bad for us? Now there are a lot of things going on, discussions going on. AI काफ़ी न्यू है, तो 2021 2022 एंड में बहुत स्मार्ट AI रिलीज हुए थे, तो 2-3 साल ही हुए हैं। अभी भी न्यूज़ में डिस्कशंस होते रहते हैं कि इज़ इट गुड फॉर अस, इज़ इट बैड फॉर अस। बट इफ़ यू सी ओवरऑल पिक्चर, तो ह्यूमंस हैव बिकम वेरी एफिशिएंट। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। आपकी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें जो मेडिकल प्रोसीजर वाली इक्विपमेंट्स है बहुत जल्दी बनने लग गई हैं। जो आपका ऑटो पायलट है प्लेन्स के, वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। देर आर लॉट लेस चांसेस। आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो बहुत स्मार्ट हो गई हैं। ह्यूमंस कैन नाउ मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। क्रिएटिव चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई हैं। सो आई विल गिव यू अ क्विक इंसाइट। सम ऑफ द स्लाइड्स ऑन दिस प्रेजेंटेशन वर मेड बाय एन AI। नाउ AI ने खुद नहीं बनाया था, आई वॉज गाइडिंग द AI ऑन वॉट टू डू इट, बट इट एक्चुअली फ्यूल्स द क्रिएटिविटी। ऑल्सो साइंस एंड हेल्थ केयर में बहुत यूजफुल है AI, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक रोबोटिक सर्जरीज होने लग गई हैं। तो दीज आर द गुड थिंग्स अबाउट AI, बट देर कैन ऑल्सो बी बैड थिंग्स, राइट?
So the first bad thing is, within the last 2 years, 15 to 20% people have lost their jobs. Why? Because उनका जो काम है अब AI करने लग गया है. So that is kind of a bad thing. But eventually, जो भी jobs जा रहे हैं, they are being replaced by jobs which can be done by an AI or a human which is being assisted by an AI. तो jobs में disruption तो हो ही रहा है. There are ethical considerations. For example, अगर एक self driving car का accident हुआ, तो who will be held responsible? The company, the owner of the car, the software engineer who made it, or the AI? बिकॉज द थिंग इज, आप एआई को जेल में नहीं डाल सकते, एआई के ऊपर केस नहीं कर सकते, आप कंपनी के ऊपर करोगे. सो देर आर एथिकल कंसिडरेशंस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एआई के पास कौन सा डेटा जाना चाहिए, एआई को कौन सी डेटा से दूर रखना चाहिए, राइट? अगर आप एक एआई को कंट्री का डिफेंस सिस्टम दे रहे हो, तो कौन से डिसीजन वो मेक कर सकता है? डज इट हैव द डिसीजन टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स और नॉट? तो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू पिक्चर. एक और चीज़ है कि हम लोग को नहीं पता कि एआई काम कैसे करता है. सो वी एक्चुअली नो इट कैन अंडरस्टैंड पैटर्न्स, it can make decisions, but the thing is, humans are not that smart as an AI, because AI एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन पावर है जो बहुत तेज़ है. तो ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड इट येट फुली. अगेन, एज वी टॉक्ड अबाउट डेटा प्राइवेसी, एआई के पास कौन सा डेटा जाना चाहिए आपका, कौन सा डेटा सेफ है, कौन सा डेटा अनसेफ है, ये सब चीज़ें पिक्चर में आती हैं. बट ओवरऑल आई थिंक एआई इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि इफ़ यू सी, सीबीएसई का जो सिलेबस है एआई का, वो भी इसी साल चेंज हुआ है. दैट इज़ बिकॉज एआई इज सडनली मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. इट इज़ मेकिंग थिंग्स सो मच easier for humans. Maybe in the next few years it will start to make scientific discoveries that have not been possible before. हो सकता है it is able to find alien life in future planets. So let's quickly go to a practice session जहाँ पर हम लोग quickly 4-5 MCQ solve करते हैं. Who is often referred to as father of AI? So two people actually worked on it. One was Alan Turing and other was John McCarthy. But John McCarthy को बोला जाता है father of AI, and Alan Turing is the second father of AI. You can see that. In which year was the term artificial intelligence first used by John McCarthy? So that was around 1950. So 1955 is the right option. What does the term data is the new oil imply? Data is as valuable as oil. That's right. Data is used as fuel for machines. That's not right. Data is a non-renewable resource. So first one would be the most appropriate answer here. Divya was learning neural networks. She understood that there were 3 layers in a neural network. Help her identify the layer. हम लोगों ने just देखा था. एक होता है input layer, एक होता है hidden layer, and then finally we have output layer. Help her identify the layer that does the processing. Processing होता है आपका hidden layer के अंदर. So B option is right. Which category of machine learning occurs in the presence of supervisor of teacher or teacher? So supervised learning, जहाँ पर हम लोग label data देते हैं. What does deep learning to mimic the human brain? Sorry for that. Traditional programming, artificial neural networks, machine learning algorithms, random decision making. So artificial neural networks कहा जाता है उसको. So एक human brain के ऊपर based है. So let's imagine this is the human brain. So human brain is created of lots of small cells called neurons. So neurons का structure अगर आप copy कर दो एक math formula में, तो उसको कहा जाता है artificial neural network. It is a bit complicated, but I hope you get the idea. What is the role of reinforcement learning in machine learning? So it actually rewards desired behaviors and penalizes undesirable ones. As we said, जैसे ही machine rule break करेगी, उसको पता होगा कि ये चीज़ नहीं करनी है. So next time it won't repeat it. So that is called reinforcement learning. Which AI application is responsible for automatically separating emails into spam and not spam categories? So Gmail में emails आते हैं. So that was a quite easy question. All right.
आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। एंड अगर आप एआई नहीं पढ़ रहे हो क्लास 11th में, अगर आप कुछ और कर रहे हो, आई थिंक दिस सेशन इज स्टिल यूजफुल फॉर यू, बिकॉज mostly 60% of the jobs in the next 5 years will be dependent on AI. So it is necessary कि आप AI के बारे में पढ़ो, AI के बारे में जानो। अगर आपको questions हैं, you can ask me in the comments of this video. I'll be happy to help you. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome, guys. Bye bye.